Hello everyone, welcome back to Super Kalam. Today we are starting with a very important session wherein we are going to revise the entire ancient history, the ancient Indian history completely from scratch through timeline. We are going to understand different important timelines of ancient history through this particular class. Now, this class is going to help you in strengthening your knowledge for prelims. It is also going to help you revise entire ancient history quickly within 30 minutes. तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप टाइमलाइन नोटिस करो ध्यान से, मैंने सभी पूरी टाइमलाइन में एंशंट हिस्ट्री के की मोमेंट्स, की पीरियड्स को नोट डाउन किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। When we look at Indus Valley civilization, where there are few things that you need to understand first. The current affairs regarding Indus Valley civilization, because discoveries are happening right now. Recently in Sivakalai, which is in Tamil Nadu, several archaeological findings have been excavated, which proves that Indus Valley civilization and the Iron Age civilization were running parallelly. बिकॉज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव फाउंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स एज वेल, जो कि मेटल एज के पहले चरण में, पहले पार्ट में पाए गए हैं। दैट मीन्स बोथ द सिविलाइजेशंस कोइंसाइडेड विद ईच अदर, बोथ वर रनिंग पैरेलली, राइट। साथ साथ ही दोनों सिविलाइजेशन एक दूसरे के समकालीन थी, ऐसा प्रूव किया गया है थ्रू दीज लेटेस्ट डिस्कवरीज। And there was a second discovery as well, wherein the Deccan College, along with the Archaeological Survey of India, have discovered human remains at Rakhi Gadi, which is the oldest Indus Valley civilization site. And these human remains dates back to 8,000 years. That means that the time period Indus Valley civilization का जो हम 2300 के आसपास रखते थे वो गलत होगा. It is 8,000 years ago that Indus Valley civilization happened. सो दीज वर द टू की डिस्कवरीज। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पढ़ना भी जरूरी है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन एएसआई। अगर मैं आपसे पूछूं कि एएसआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो व्हाट विल बी योर आंसर? जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। एएसआई वर्क्स अंडर, यस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। It works under the Ministry of Culture, and it is one of the premier organization for the archaeological research and protection of the cultural heritage of the nation. Do you know that it was founded in 1861, ASI? And who founded it? This question came in prelims as well. It was founded by Alexander Cunningham. So you can write it down as well. Alexander Cunningham established this organization, and he was known as the father of Indian archaeology. Now this question has been asked time and again, तो PYQs को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, because from the previous year questions you get the hint towards the mindset of UPSC examiner when you are studying any topic. I've shared the link of some PYQs in the description box. You can practice it after you complete revising this class. Now let us understand some things about Indus Valley civilization. First of all, when we talk about Indus Valley civilization, why is it is known as Indus Valley? Because it was near the river Indus. As you can look at this particular map, ध्यान से इस मैप की तरफ देखना है। आप देखोगे कि ये अपनी इंडस रिवर जा रही है, and इसी के आसपास आप देखोगे कि we have the Indus Valley civilization. We have Kot DG, Chanu Daro, we have Alamgirpur, Kalibangan. Kalibangan में काफी सारे fire altars मिले हैं, which proves that the Havans, the Yagyas were conducted. Then we have Harappa, that is why it is known as Harappan civilization also. फिर हमारे पास यहाँ पर मोहिंजोदारो हो जाता है. डू यू रिमेंबर अ मूवी केम wherein Hrithik Roshan was the lead actor, Mohenjo-daro, which showcased the Indus Valley civilization. We have Surkangen-dor, where the bones of horses have been found. सुरकोटड़ा में भी घोड़ों की हड्डियां मिली हैं, but it is not clear कि if the wars were used in warfare, because warfare का कहीं भी एग्जाम्पल या डिस्कवरी नहीं मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. Now let's move forward. Let us understand the features of this civilization. Very important topic. In 1924, the DG, that is the Director General of Archaeological Survey of India, John Marshall, he announced the discovery of this civilization. एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन टोटल उस टाइम पर जो चार ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, उनमें से एक थी.
There were very important prominent parts of Indus Valley civilization, or you can say very highlighted features. For example, we had the grid system, burnt bricks, advanced drainage system, houses had wells, citadel. अब यहाँ पर दिखता है कि there was a distinction between the priestly class people and the business class people. We had citadel. Citadel means when there is there are houses built on the elevated platforms, उसको हम citadel बोलते हैं. Now there is one more interesting fact about Indus Valley civilization. Do you know that the site Harappa was excavated by which person, which archaeologist? The site Harappa was excavated by, it was Dayaram Sahini. तो ये याद रखना जरूरी है. A lot of times questions have been asked. 1921 में दयाराम साहिनी ने इन्होंने क्या किया, हरप्पन सिविलाइजेशन को एक्सकवेट किया था, which was situated on the bank of the river Ravi. And here granaries, human anatomy, bullock carts were found. Sandstone statues भी पाए गए हैं. अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो वाज एक्सकवेटेड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी सर. विच ईयर? 1922. इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस, वेयर इन पंजाब, जो पाकिस्तान के साइड पंजाब आ गया है, उस साइड पर मोहनजोदारो पाया गया है. एंड हियर द ग्रेट बाथ वाज फाउंड, विच वाज यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक वर्शिप. आपको याद है ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू, वो भी मोहनजोदारो में ही पाया गया है. द स्टैचू वाज आल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो. द बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू वाज आल्सो फाउंड इन मोहनजोदारो. सो अगेन दिस बिकम्स वेरी रेलेवेंट साइट. फिर यहाँ पर हम सुटगेन गुडोर की बात करते हैं. हियर यू विल फाइंड अ ट्रेडिंग पॉइंट विच वाज स्टैब्लिश्ड बिटवीन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इंदस वैली सिविलाइजेशन. इस साइट को एक आर्कियोलॉजिस्ट स्टाइन थे जिन्होंने 1929 में डिस्कवर किया था. उसके बाद हमारी साइट आ जाती है चानू दारो. ये रही चानू दारो. चानू दारो वॉज नियर द इंदस रिवर एंड इट वॉज एक्सकवेटेड बाय सर एन जी मजूमदार. नाउ इन विच ईयर इट वॉज एक्सकवेटेड? 1931 में इसको एक्सकवेट किया गया था. एंड हियर यू विल फाइंड अ फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग द कैट. सो एविडेंसेस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स also existed during Indus Valley civilization. यहाँ पर आप देखेंगे अमरी साइट है. This अमरी साइट is often not asked by UPSC, but it is very relevant. Why? Because यहाँ पर हमको पता चला कि एंटीलोप यहाँ पर पाया गया है. डियर जैसा जो आपका जानवर होता है ना, which was it was found, the evidence of these skulls of antelope which was found over here. And again it was again discovered in 1935 by NG Majumdar sir only. कालीबंगन में जैसे मैंने आपको बताया कि फायर ऑल्टर्स पाए गए. कैमल बोन्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड इन कालीबंगन. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1953. देन हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लोथल. लोथल वॉज डिस्कवर्ड बाय आर राव. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय आर राव इन 1953. एंड यहाँ पर आपको दिखेगा डॉकयार्ड, द शिपिंग स्टेशन. अगर बाहर से शिप्स, ट्रेड शिप्स आ रही हैं तो वो यहीं आके पार्क होती थी. फर्स्ट मैन मेड पोर्ट यहाँ पर पाया जाएगा. फर्स्ट मैन मेड पोर्ट इज ऑल्सो फाउंड ओवर हियर. चेस भी यहाँ पर पाया गया है. द गेम ऑफ चेस, दैट मीन्स इट वॉज ऑल्सो प्लेड ड्यूरिंग इंदस वैली सिविलाइजेशन. सुरकोटड़ा में जैसे मैंने आपको बताया कि घोड़ों की हड्डियां पाई गई थी. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन इंदस वैली सिविलाइजेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब देखिए इंदस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाएंगे वैदिक पीरियड में. अब वैदिक पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है बिकॉज वैदिक पीरियड के अंदर आप देखोगे कि we transitioned from just trade oriented to literature oriented as well, to understanding the mysteries of cosmos. because Vedic period में वेद लिखे गए. Vedas are the pathway through which you can understand the soul, you can understand the universe, you can understand the functioning of cosmos and nature. वेद के अंदर नेचर के इतने सीक्रेट्स पाए जाते हैं. इवन नॉट जस्ट नेचर, so many diseases can be cured by natural intervention, nature, herb, etc. So everything about further expansion of how a man thinks could be seen in Vedic period. Vedic period में आप देखोगे वेद लिखे गए थे. वेद का रूट वर्ड है विद, जो कि संस्कृत वर्ड से लिया गया है. विद मतलब होता है जानना, टू नो. सो देयर आर 4 वेदास: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. डू यू नो दैट द लेटेस्ट वेद which was added in these vedas was the अथर्ववेद? इनिशियली there were 3 वेद्स only. बाद में अथर्ववेद को ऐड किया गया. अथर्ववेद talks about medicines holistically.
वेदास बेसिकली रिप्रेजेंट द ओरल ट्रेडिशन, और कलेक्टिवली वेदास को हम संहितास भी बोलते हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के अंदर काफी इनिशियल हाइम्स हैं टू वर्शिप नेचर। गायत्री मंत्र इज रिटन इन ऋग्वेद, पुरुषा सूक्ता इज रिटन इन ऋग्वेद। एंड ऋग्वेद में टोटल 10 किताबें हैं जिनको कलेक्टिवली हम मंडलास बोलते हैं। देन वी गो टू सामवेद। ऋग्वेद के मंत्रों में पोएमेटिक, पोएटिक आप देखोगे एक्सप्रेशंस ऐड किए गए हैं, म्यूजिक ऐड किया गया है, एंड हेंस इट बिकेम सामवेद। Then we have the Yajurved. Yajurved is divided into two kinds of Ved, Krishna Yajurved and Shukla Yajurved. Krishna Yajurved is also known as black magic. इसके अंदर थोड़ा सा black magic है. A black magic negative sense वाला नहीं. To remove evil eyes. That kind of black magic. Then Shukla Yajurved, which is about the white magic, जो कि आप घर प्रवेश या फिर नामकरण संस्कार में जो मंत्र यूज करते हो वो आपके शुक्ल यजुर्वेद में आता है। Then we have the Atharva Ved, which is all about medicines. It is said that 99 most deadly diseases can be cured by the medicinal approach of Atharva Ved. But many herbs which are mentioned in the Atharva Ved cannot be easily found in the nature. We have to do research work to extract them, to find them. That is the mysticism about the Vedic period. Then we have in the Vedic period, if we go by the society, we will see that in during the administration time of Vedic period, we can see that there were two kinds of bodies. So we had the sabha and we had the samiti. अब सभा और समिति की जब हम बात करते हैं, वी नीड टू रिमेंबर दैट दीज वर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज वेयर पीपल कलेक्टिवली कुड पार्टिसिपेट टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम सभा और समिति की यहाँ पर बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। सो इट वॉज बेसिकली अ सोशल यूनिट काइंड ऑफ सोसाइटी विच एग्जिस्टेड। सभा की बात करेंगे, सो इट वॉज द काउंसिल ऑफ सेलेक्ट क्लैन मेंबर्स। कुछ ही क्लैन मेंबर्स थे जो सभा का पार्ट बन सकते थे। व्हेन वी टॉक अबाउट समिति, समिति कंप्राइज्ड ऑफ द होल क्लैन, द इंटायर फैमिली विच एग्जिस्टेड इन द विलेज, that was a part of samiti. Sabha में few selected families could only participate, and the chief of the village was known as rajan, who is the king. जब हम बात करते हैं आगे फर्दर, व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेस, तो हाउ द टैक्सेस वर पेड टू द राजन, पीपल यूज टू गिव द बलि, भाग और शुल्क टू द राजन। बलि मीन्स वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन, आप अपनी तरफ से जो आपकी इच्छा है वो दे रहे हो। भाग मीन्स अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। शुल्क मीन्स, शुल्क मतलब टैक्स ही होता है। आप, एंड टैक्स वॉज नॉट गिवन इन मनी फॉर्म, इट वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैटल, बिकॉज कैटल वॉज द प्रोमिनेंट यूनिट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। बाटर सिस्टम था उस टाइम पर, है ना। तो इस तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस थे जो लोग दिया करते थे राजा को। एंड देवर द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णा, बट हियर वर्णा वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैमिली यू आर born into. Varna was based on the profession that you were carrying out. In one family there could have been two or more people of different varna which could exist. एक ही फैमिली में ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा एग्जिस्ट कर सकते थे, बिकॉज वर्ण आता था आपके प्रोफेशन से, आप क्या काम करते हो। ओके, यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। देन वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द पीरियड, जब हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्राह्मण्स, द ऑर्थोडॉक्सी नेचर ऑफ ब्राह्मण्स, वी सी द ओरिजिनेशन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. We see that Vedas were written in Sanskrit language, so it was not easy for everyone to comprehend Vedas. It was not easy for everyone to understand Vedas. इसीलिए हम देखते हैं that the Kshatriya and the other people, Shudras and the Vaishyas, they started following Jainism and Buddhism, because Jainism and Buddhism में Lord Mahavira and Lord Buddha, both of them propagated the feeling of mutual respect. They said we are part of this entire world is a part of one large cosmos. We are not different based on different varnas or the professions, etc. So Jainism religion is also known as Shramanic religion. Shraman मतलब क्या होता है, monk या फिर ascetic, सन्यासी. And there were different factors which led to the origination of Buddhism and Jainism. For example, the orthodoxical nature of Brahmins, because not everyone could comprehend what is written in the Vedas. Some of the Brahmins used to take advantage of it. Caste discrimination became prominent. People started misunderstanding the Varna system, and they started discriminating based on the basis of caste. And then Sanskrit was tough to interpret, so not everyone could read Purush Sukta properly and understand the deep
cosmic meaning of Purusha Sukta or Gayatri Mantra or other mantras for that matter. And that is why they took to a more simpler approach. सिंपल डॉक्ट्रिन्स थे जैनिज्म और बुद्धिज्म में, इसीलिए लोगों को समझ भी आते थे. बुद्धा ऑलवेज यूज टू से दैट द डिविनिटी दैट यू आर सीकिंग आउटसाइड ऑफ योर बॉडी रिसाइड्स इनसाइड ऑफ योर बॉडी इटसेल्फ. द प्राण दैट यू आर टेकिंग इन, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, दैट इज द डिविनिटी विद इन यू. अगर वो प्राण ही आपसे ले लिए जाएंगे, वो सांस आपसे ले ली जाएगी, तो आपकी बॉडी तो फिर सिर्फ ढांचा है मिट्टी का. तो इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ईजी था लोगों के लिए. अब यही पीवाईक्यूज में, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई फर्स्ट काउंसिल कब हुआ जैनिज्म में. इट वाज हेल्ड इन बिहार इन पाटलिपुत्रा वेयर स्थूलभद्रा वाज द लीडर ऑफ द काउंसिल एंड इट वाज हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग चंद्रगुप्त मौर्य. The second council, that means the meeting of the Jain monks, it happened in Vallabi in Gujarat, wherein the king was the president of the meeting was Shema Sarmana. तो अगेन ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. मैंने एक छोटे से बॉक्स में इसको समराइज किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन जैनिज्म, बिकॉज लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन जैनिज्म विच वाज आस्क्ड. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्तूपा का टॉपिक. आप देखोगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में स्तूपा टॉपिक देखने को मिलता है, बट डू यू नो कि जो स्तूपा टॉपिक है ये कहाँ से निकल कर आया है. ये टॉपिक निकल कर आया है संस्कृत से, दैट इज हिंदुइज्म से. बाद में ये लेटर ऑन फेमस होने लगा और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा. देन वी हैव द डॉक्ट्रीन ऑफ जैनिज्म. जब हम जैनिज्म के डॉक्ट्रीन की बात करते हैं, दो तरीके की विश्वास है जिसमें जैनिज्म बिलीव करता है, स्यादवदा एंड अनेकांतवदा. स्यादवदा मीन्स थ्योरी ऑफ जजमेंट, व्हेन यू जज एवरीथिंग बिफोर बिलीविंग इनटू इट. आप स्यादवदा के अंदर चीजों को जज करते हो, उसके पीछे का लॉजिक समझते हो. स्यादवदा इज ऑल्सो डॉक्ट्रिन ऑफ जैन metaphysics. That means it also says that all judgments, write it down, ये बोलता है कि जो सारे जजमेंट्स हैं they are, write it down, conditional. All the judgments are conditional. That means any statement about reality can only be true under certain conditions from a certain specific perspective. ऐसा नहीं है कि आप अपना ही जजमेंट लगा के किसी चीज के पीछे के ट्रूथ या फॉल्स को देखो. आपको जो कोई सिचुएशन हुई है तो उसमें आपको कंडीशंस देखने हैं कि भाई सामने वाले के पर्सपेक्टिव से क्यों ये चीज हुई. When you understand different perspectives, only then you can go to the final conclusion instead of just relying on your own perspective and judgment. That is Syadvada. Anekantavada means that ultimate truth and reality is very complex. अगर आप अनेकांतवदा फिलोसफी को देखो तो अनेक मतलब मल्टीपल. दैट मीन्स इन सियादवदा देर आर टू कंडीशंस. एक है आपका पर्सपेक्टिव, एक है सामने वाले का पर्सपेक्टिव. अनेकांतवदा टेक्स इनटू अकाउंट एवरी पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी काइंड ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दैट सिचुएशन. मल्टीपल एस्पेक्ट से एक सिचुएशन को देखो एंड देन फाइनली कम टू द कंक्लूजन. दैट इज अनेकांतवदा. So that is the doctrine of Jainism. What you should not believe in everything unconditionally. nahi, you have to look from multiple perspective or at least from your and other person's perspective. That is Syadvada and Anekantavada. ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बिकॉज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. स्यादवदा पे आपके सेंस ऑर्गन्स पे आपको भरोसा करना पड़ेगा. आपने क्या देखा, क्या आपने सुना, क्या आपने बोला. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है. अनेकांतवदा इज मोर अबाउट लॉजिकल थिंकिंग फ्रॉम मल्टीपल एस्पेक्ट्स. Okay, and there are two sects in Jainism. One sect is Swetambara, where people do not they wear white clothes. It was led by Stula Bahu. And second is Digambara, जहाँ पर कुछ भी नहीं पहनते हैं monks. You must have seen many of the Jain monks who are wearing nothing, right? This sect was led by Bhadrabahu. So basically they give up on clothes so that they can cut off their material connections. Okay. अब यहीं पर अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, लेड डाउन बाय एंड प्रोपगेटेड बाय लॉर्ड बुद्धा. सो बुद्धिज्म बिलीव्स इन वन सिंपल टेनेट कि जस्ट फाइंड योर मिडल पाथ. अपना मिडल पाथ ढूंढो, मध्यम मार्ग इसको बोलते हैं. दैट मीन्स डू नॉट इंडल्ज इन प्लेजर, डू नॉट इंडल्ज इन
बिल्कुल लेथार्जिक की कंडीशन, कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। और बिल्कुल प्लेजर में भोग रहे हैं सब कुछ, वो भी नहीं करना है। आप अपना कर्म करते जाओ, मध्यम मार्ग पे चलते जाओ, मिडल पाथ होना चाहिए, वरना एक्सट्रीम दोनों ही चीजों का, चाहे आप कुछ काम नहीं कर रहे या आप कुछ बहुत ज्यादा प्लेजर में हो, दोनों ही सिचुएशन में इंसान अपने पाथ से भटक जाता है। ओके। देन बुद्धिज्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट फोर नोबेल ट्रूथ। सफरिंग, दैट मीन्स दुखा। देन वी हैव समुदय, दैट मीन्स एवरी दुख हैज अ कॉज, हर दुख के पीछे कारण है। निरोध, व्हेन यू फाइंड द कॉज यू हैव टू रिमूव द कॉज, विच इज निरोध। एंड अठांग मार्ग, दैट इज एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ क्या बोलता है कि एन आइडियल पर्सन लिव्स हिज और हर लाइफ बेस्ड ऑन एट फोल्ड पाथ, with the right view, right intention, right livelihood, right action, right speech, right concentration, right mindfulness and right effort. अगर आपका दुनिया को देखने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपके एक्शंस, आपकी कोशिश, आपका नजरिया, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेंटल क्लैरिटी अगर सही है, तो यू कैन इजीली अटेन द पाथ ऑफ निर्वाण। निर्वाण मीन्स when the fire of desires in you gets extinguished, that at that proper moment you attain निर्वाण। इसको हम निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण के ऊपर 2012 में क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में, इसीलिए आई एम आस्किंग यू, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू प्रैक्टिस द PYQs ऑन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ऑल्सो। आई हैव गिवन यू द लिंक, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करके प्रैक्टिस अभी खत्म करो, है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से जैनिज्म बुद्धिज्म तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर। स्टार्ट विद द संगम एज। अब हम संगम एज से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी, संगम एज इज यूपीएससीज फेवरेट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स स्पेसिफिकली। तो संगम एज से काफी क्वेश्चन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। प्रैक्टिस किए बिना आज के इस क्लास को खत्म मत करना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि क्लास के बाद आप PYQs जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जब हम संगम एज की बात करते हैं, हम पीरियड देखेंगे रफली बिटवीन थर्ड सेंचुरी टू BC टू थर्ड सेंचुरी AD। साउथ इंडिया में ये एज आता है, एंड इट इज लिटरेचर वाइज अ वेरी रिच पीरियड, नेवी वाइज अ वेरी रिच पीरियड। प्लस संगम एज में आप देखोगे श्रीलंका और चाइना, इंडोनेशिया में काफी हमारा ट्रेड हुआ है, काफी हमने अपना एक्सपेंशन देखा है। Now when we talk about Sangam, why? Because it was a Sangam of three very prominent kingdoms, and also the Sangam of Tamil poets. That is why it is known as Sangam age. कौन से तीन prominent kingdoms थे पहले वो देख लेते हैं। We had the Cheras, the Cholas and the Pandyas. So when we talk about the Cheras, we need to remember they ruled in the Kerala and Tamil Nadu region. चोलास सेंट्रल एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु रीजन में रूल करते थे, एंड पांड्याज रूल्ड फ्रॉम मदुराई। अब यहाँ पर जब हम चेरास की बात करते हैं, इनका एम्बलम, तीनों के एम्बलम देखेंगे, फ्लैग पे जो एम्बलम ये यूज करते थे टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। Cheras used the bow and arrow symbol. Cholas used the symbol of tiger, and the Pandyas used the symbol of fish. So that shows their prominence in the ocean region, the water region. Cheras की अगर हम बात करें, here in the Cheras we will see that they were very prominent kings, and यहाँ पर Sengutuvan, जिनको हम गुड चेरा भी बोलते थे, रेड चेरा भी बोलते थे, वो ग्रेटेस्ट रूलर माने गए हैं। He was the first one to send an embassy to China from South India. That is a very very famous step that he took. And plus ये लोग पूजा किया करते थे गॉडेस कन्नगी की, जिनको एक आइडियल वाइफ के तौर पे तमिलनाडु में आज भी पूजा जाता है। Some say that she was the incarnation of माँ पार्वती। Okay, then we have the Cholas. Cholas का कोर रूल एरिया था कावेरी डेल्टा, तो जिसको आज हम चोला मंडलम भी बोलते हैं। And their capital was Urayur, which is near the Tiruchirappalli town. So that is why this is a very very strong kingdom, because इनकी नेवी बहुत strong थी। King Karikala was the famous king of the Sangam Cholas, and there is a very very famous writing on his life, जिसको हमें देखने को मिलती है वो writing in the book Patinapalai, which portrays his life and his military conquest. तो संगम एज की जब हम बात करते हैं ना, तो संगम एज में आप देखोगे काफी सारा लिटरेचर है। There are two very famous epics. One of them has been asked on in PYQs also, which is the Sillapatikaram. Sillapatikaram was the famous epic written by Ilango Adigal. And second famous epic in Chola, in the Sangam period was Mani Megalai. Mani Megalai was written by Sitalai Stunner.
सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर हम चोला पीरियड की बात करें तो काफी सारी किताबें लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल तोलका पीएम हैज बीन आस्क्ड इन PYQ। तोलका पीएम वॉज रिटन बाय तोलका पियर। तमिल लिटरेचर में सबसे पहली सबसे फोरमोस्ट जो किताब है जो तमिल ग्रामर के ऊपर लिखी गई है, दैट इज तोलका पीएम। देन वी हैव एटुटुगाई। एटुटुगाई में एटू का मतलब होता है 8, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 वर्क्स। पट्टू पट्टू जिसके अंदर 10 किताबें लिखी गई थी। Then we have Patinen Kila Kaniku, which is a book written on the ethics and morals which were followed by people in the Sangam period. अब संगम पीरियड में ना, संगम का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, है ना, अकेडमी। सो देर वर 3 संगम्स और 3 एसोसिएशंस which were conducted. The first Sangam was conducted in Madurai. The second Sangam was conducted in Kapadapuram. And the third Sangam was conducted again in Madurai. It is said, it is believed that the first Sangam was attended by the divinities, that is the gods and the angels, etc. तो यहाँ पर फर्स्ट संगम में आप देखोगे किसी राजा का मेंशन नहीं है, यहाँ पर सारे देवी देवता आए थे इस संगम में, इस एसोसिएशन में विचार विमर्श करने। ओके, इसलिए यहाँ कोई किताब भी नहीं पाई गई है इस पर्टिकुलर पीरियड की। अब यहीं से सेकंड पीरियड हमारा आता है विच इज द मॉडर्न एज। व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न एज, इसकी एक खासियत है कि मॉडर्न एज में आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, यू नो, हु वाज लेड बाय, हु वाज आल्सो गाइडेड बाय द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य, दैट इज चाणक्य। तो उन्होंने काफी एडवर्सिटीज में नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके अपनी मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। एंड हाउ डू वी नो अबाउट दी चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज डायनेस्टी? थ्रू अर्थशास्त्र, थ्रू वेरियस अशोकन इंस्क्रिप्शन, थ्रू द बुक मेगास्थेनिस इंडिका, दिव्य वदना जो कि अशोका के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। श्रीलंकन बुक्स है हमारे पास, दीपा वंसा। तो दीपा वंसा और दिव्य वदना, अगेन ये क्वेश्चन PYQ में इनके ऊपर पूछे गए हैं। मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ? ताकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो ना, तो आप समझ सको कि किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं व्हेन यू आर रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स। तो देयर वर डिफरेंट किंग्स इन मौर्यन पीरियड। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोका, दशरथ, संप्रति, शालीशुखा, देववर्मन, शठाधनवन एंड लास्ट वन वाज बृहद्रथ। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखनी है कि द फर्स्ट 3 वर द पीपल हु एक्सपैंडेड द मौर्यन एम्पायर, बट आफ्टर अशोका द एम्पायर वेंट डाउन एंड डाउन। ओके, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या अचीवमेंट रही है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है दैट चंद्रगुप्त टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग अनपॉपुलैरिटी ऑफ द नंदास। ही ओवरथ्रू द नंदास एंड एस्टैब्लिश्ड द रूल ऑफ मौर्यन एम्पायर। ही इवन फेस्ड द ग्रीक्स। सेल्यूसिड्स थे जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव डायनेस्टी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद, उनको भी डिफीट किया। बट चंद्रगुप्ता's मौर्या's policies were to establish friendly relation with the फॉरेन नेशंस और दी फॉरेन इन्वेडर्स। मतलब उन लोगों को, कुछ लोगों को तो युद्ध करके हराया करते थे, पर कुछ लोगों के से मैट्रिमोनियल अलायंस करके उनको अपने अधीन कर लिया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, टू प्रोटेक्ट आवर नेशन। द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ओवर सर्दर्न इंडिया इज मेंशन्ड इवन इन अशोका's inscription, in the Jain text, even in Sangam literature. एंड ऑल्सो इट इज सेड कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनिज्म को लेटर ऑन इम्ब्रेस कर लिया था। इट इज सेड अशोका इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म इन द लेटर टाइम पीरियड ऑफ हिज लाइफ एंड इवन हिज सन एंड डॉटर्स दे स्टार्टेड प्रोपगेटिंग बुद्धिज्म। तो जब आगे बढ़ते हैं अशोका के केस में, तो आप देखोगे अशोका's धम्मा। सो ही बेसिकली प्रोपगेटेड द डेफिनेशन ऑफ धम्मा, धर्म, दैट मीन्स आपका एज एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या धर्म होना चाहिए। नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, शोइंग गुड बिहेवियर विद एवरीवन, टू स्पेंड लेस, टू प्रिजर्व लेस। तो जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में दोनों में ही की कॉन्सेप्ट है कि आप पोसेसिव नहीं रहें किसी भी चीज को लेकर, अपने पोसेशंस को नहीं अपने पास रखना है। वो मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम मॉडर्न एज के सोसाइटी की अगर हम बात करें, तो सोसाइटी में आप देखोगे वर्ण सिस्टम प्रेवलेंट था। इट वॉज प्रेवलेंट, आई विल राइट इट डाउन, वर्ण सिस्टम वॉज प्रेवलेंट। बट वर्ण सिस्टम में आप देखोगे अगेन दे वर फोकसिंग मोर ऑन द प्रोफेशन। अगर हम यहीं पर सती सिस्टम की बात करें इन द सोसाइटी, कौटिल्य हैज नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सती सिस्टम, बट देर आर सम मेंशंस ऑफ सती सिस्टम प्रेवलेंट इन दी पंजाब एरिया ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है अबाउट द मौर्यन एम्पायर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मौर्यन एम्पायर, आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर में आजीविका के लिए भी केव्स हुआ करते थे। दोज मंक्स जो एक जगह टिककर नहीं
रहते थे, दे यूज टू रोम अराउंड हियर एंड देयर प्रीचिंग अबाउट धर्म एटसेट्रा। तो अशोका ऑल्सो बिल्ड केव्स फॉर देम, बराबर नागार्जुनी हिल्स आप देखोगे तो अशोका और दशरथ दोनों ने ही ये केव्स आजीविका के लिए बनाई है, तैयार करवाई हैं। एंड इफ वी लुक एट स्तूपास ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, अगेन स्तूपास वाज आल्सो बिल्ट, सिलिंड्रिकल ड्रम जो होता था, ठीक है, विद हर्मिका एंड छत्र एट द टॉप, सो दैट वाज आल्सो बिल्ट बाय द मौर्यन एज, इन द मौर्यन एज। प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका कहाँ से आता था? लैंड रेवेन्यू था इनका प्राइमरी सोर्स रेवेन्यू का, जमीन से जो रेवेन्यू आता था उसी में से अपना हिस्सा यहाँ पर लिया जाता था। एंड देयर वर टू काइंड्स ऑफ लैंड्स, लैंड्स भी दो तरीके की हुआ करती थी। वन वाज द स्टेट लैंड विच वाज नोन एज द राजकीय लैंड, सेकंड वाज द प्राइवेट लैंड विच वाज नोन एज द निजी भूमि, ठीक है, राजकीय भूमि और निजी भूमि। स्टेट लैंड से जो इनकम आती थी उसको हम सीता बोलते थे, ठीक है, एंड यहाँ पर जो निजी प्राइवेट लैंड से इनकम आती थी उसको हम भाग बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टैक्स वाज कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड ऑल्सो इन काइंड। नाउ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर हम आ जाता है, जब हम मौर्यन एम्पायर से आगे बढ़ते हैं हमारे पास आता है गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड को बोला जाता है गोल्डन एज। व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन एज, वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। यहाँ पर इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 320 से 550 सीई के आसपास का इसका टाइम पीरियड रहेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गुप्ता एम्पायर अक्रॉस नॉर्दर्न सेंट्रल, और आप देखोगे इवन इन सम पार्ट ऑफ डेक्कन रीजन, आप देखोगे गुप्ता एम्पायर वाज प्रेजेंट। तो जब हम गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं रूलर्स का। सो वी हैव श्री गुप्ता वन हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर और द डायनेस्टी। देन वी हैव द घटोत्कच, घटोत्कच हमारे जो थे वो सेकंड रूलर थे। फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त वन। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ही इज नॉट फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, ओके। देन वी हैव चंद्रगुप्त वन के बाद हमारे पास आ जाते हैं समुद्रगुप्त। वी विल स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम, फटाफट से हम रिवीजन करेंगे अपनी, डोंट वरी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट किंग इज कच्छा, एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन एज विक्रमादित्य। We have Vikramaditya as the next king, and then we have Kumaragupta. कुमारगुप्ता के बाद हमारे पास आते हैं स्कंदगुप्त, एंड आफ्टर स्कंदगुप्त व्हाट हैपेंस, गुप्ता एम्पायर का लीनियज खत्म हो जाता है। तो जब हम एक एक करके एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट श्री गुप्ता, ही फाउंडेड द डायनेस्टी। देन वी हैव घटोत्कच, बट आफ्टर घटोत्कच वी हैव द वेरी प्रोमिनेंट king called Chandragupta I. He was the son of Ghatotkacha. It is said that the empire of Chandragupta I may have included the areas of modern day Bihar, उत्तर प्रदेश एंड इवन बंगाल वाज रूल्ड बाय हिम। ये तीन एरियाज इनके द्वारा रूल किए गए थे। चंद्रगुप्ता वन वाज लेटर ऑन सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्ता हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग। प्लीज राइट इट डाउन, इनको ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है पूरे गुप्ता एम्पायर का, बिकॉज ही एक्सपैंडेड गुप्ता एम्पायर एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड गुप्ता एम्पायर बिकेम द गोल्डन एरा और द गोल्डन एज। देन वी हैव समुद्रगुप्त, पर यहाँ पर गोल्डन एज बनने का कारण क्या है? बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे इन द गुप्ता पीरियड वी विल सी, I will use another ink to explain to you why it is known as the golden age. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला फैक्टर हो जाता है दैट द ट्रेड एंड द कॉमर्स expanded during the Gupta Empire. Second reason is that gold and silver coins were used during the Gupta Empire. Third reason is कि यहाँ पर highly evolved स्टील क्राफ्ट देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इंडियन आयरन जो है वो गुप्ता एम्पायर में ही फ्लरिश हुआ। फिर आप देखोगे इवन मिडिल ईस्ट के साथ हमने ट्रेड रिलेशंस हमारे स्टैब्लिश कर दिए थे, तो अगेन आर ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज फ्लरिशिंग। उसके बाद आप देखोगे सेक्युलरिज्म वाज एट इट पीक, मतलब गुप्ता एम्पायर में वो वैष्णविज्म also was respected, then the Shaivism and the Shaktism, all these Buddhism, even Buddhism, Jainism were respected, secular थे, Buddhist monasteries भी थी, liberal donations भी मिलते थे, तो that means the kings were more tolerant towards the different religions, है ना। फिर यही हम देखते हैं संस्कृत as a language फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत ही फेमस प्ले राइटर हैं कालिदास, हरिसेना वेरी फेमस पोएट है ना, हरिसेना,
Then we have Shudraka. Questions on these poets and writers have been asked. He wrote Mritchakatika. And then we have Vishaka Datta. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर विशाखा दत्ता भी आ जाते हैं. मतलब वेरी प्रोमिनेंट राइटर्स, पोएट्स, दे केम अप इन दी बुद्धिस्ट पीरियड, इन दिस पर्टिकुलर गुप्ता पीरियड. एंड देन वी हैव द राइज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. दोनों ही पीक पर थे. एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी को, पूरी दुनिया को जो नॉलेज हमें साइंस आज मिली है वो गुप्ता एम्पायर के दौरान ही मिली है. ठीक है. एंड देन वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ एपिक्स विच वर ट्रांसलेटेड. इवन अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, if we talk about the Nalanda University, it was founded by Kumaragupta I. It is one of the most celebrated Buddhist educational center in North India. So that is why Gupta Empire as a whole is known as the golden era or the golden period. So this was our entire summation of ancient history through timeline. सारे key points हमने पढ़े. I also told you about the previous year questions जो आपको प्रैक्टिस करने हैं. लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है. आप अपने स्कोर्स मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जरूर बताना. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. डू मेक नोट्स एंड माइंड मैप्स लाइक दीज. टाइमलाइन बेसिस में हिस्ट्री को पढ़ोगे तो हिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी. थैंक यू सो मच एवरीवन.